Yes, so students, today we are starting the third topic of our P3, which is trigonometry, right? Trigonometry में हमारे पास AS trigonometry में क्या क्या था जनाब? Curve sketching, equation solving, and identities. Same here, curve sketching, equation solving, and identities. How to solve different equations? We have different formula in the topic of trigonometry. आज हम जरा स्टार्ट कर रहे हैं बाय कर्व स्केचिंग. ओके जी, बाय कर्व स्केचिंग. कर्व स्केचिंग एएस में आप लोगों ने बहुत प्रॉपर्ली बहुत तरीके से किया हुआ है, वहीं से ही हम स्टार्ट लेते हैं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कर्व स्केचिंग. Now, in curve sketching, what is the basic equation to sketch any curve? The basic equation to sketch any curve is y equals to a sin. मैं basic equation sin के साथ लिख रहा हूँ. A sin bx plus c. It is same for cos. It is same for tan. Right? What is a here? What is a here? A is called amplitude. What is b here? B is called cycles in 360 degrees. And what is C? C is called main axis. C is called main axis. Right? The three things we have. First, amplitude, second, cycles in 360. Third one is main axis. Now, I'm sketching the first curve. Let the first curve is of y equals to sin x. First curve is y equals to sin x. So now, how can we sketch this? Here it is 90, 180, 270, and 360. 90, 180, 270, and 360. ठीक हो गया? Now, अब आप देखिए साइन कर्व. What is the amplitude here? Amplitude here is 1. सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? Main axis. C. Main axis देखना. Here the main axis is sin x plus 0. Sin x plus 0. तो मेन एक्सिस क्या हो गया जनाब? अगर मैं इसको लिखता हूँ प्लस 0, तो हम इसको क्या इक्वेशन कैसे बनाते हैं एक्सिस की? y equals to 0. तो y equal to 0 is the main axis. Y equal to 0 is the main axis. Now, अब क्या होगा जनाब? Y equal to 0 जो मेन एक्सिस बना वो कौन सा बन गया जनाब? x एक्सिस बनकर आ गया. क्या बनकर आ गया? x एक्सिस बनकर आ गया. सबसे पहले मेन एक्सिस देखा गया. After the main axis, we have to focus on the amplitude. मेन एक्सिस से जो भी एम्पलीट्यूड होगा उतना ऊपर और उतना नीचे हम मूव कर रहे हैं. कितना है एम्पलीट्यूड यहाँ पर? 1. तो वी हैव टू गो 1 यूनिट अबव एंड 1 यूनिट बिलो. एनी कंफ्यूजन? 1 यूनिट अबव, 1 यूनिट बिलो. नाउ वी हैव टू स्केच द कर्व ऑफ साइन. फर्स्ट हमें क्या देखना होगा? मेन एक्सिस. फर्स्ट हमें क्या देखना होगा? मेन एक्सिस. मेन एक्सिस देखा y इक्वल टू 0 जो बनकर आया एक्स एक्सिस. मेन एक्सिस के बाद हमें देखना होगा एम्पलीट्यूड.
मेन एक्सेस के बाद हमें देखना होगा एम्पलीट्यूड. Amplitude according to the question is 1, so we have to go 1 unit above and 1 unit below. अब हम साइन को स्केच करेंगे. एंड व्हाट इज द बेसिक साइकिल ऑफ साइन. साइन का साइकिल कहां से स्टार्ट होता है जनाब? एक्सेस मैक्सिमा, एक्सेस मिनिमम, एक्सेस. दिस इज द बेसिक साइकिल ऑफ साइन. स्टार्ट करते हैं जनाब कर्व स्केच करना. द फर्स्ट वैल्यू इज एक्सेस, सेकेंड इज मैक्सिमम, excess, minimum, excess. Here it is the curve of sine. Any confusion? Any confusion? Where? Clear? After the curve of sine, we are sketching the curve of cos. We are sketching the curve of cos. Second one. Y equals to, sir, the board is here. Y equals to cos x. What is the cycle of cos? Cos will start from maximum, then excess, minimum, excess, maximum. जनाब cos का कर्व स्केच कर रहे हैं. Here is the curve of cos. Again, what is the main axis? It is 0. So x axis पर आ गए. What is the amplitude? It is 1. So we have to go 1 unit above again, 1 unit below here. Cos का कर्व स्केच करते हैं from maximum, excess, minimum, excess, maximum. Here is the curve of cos. Here is the curve of cos. Any confusion in the cos curve? Clear? After that, we are sketching the curve of tan. The third one, curve of y equals to tan x. What is the basic cycle of tan? Tan will start from excess, then infinite. Excess, then infinite. Excess. Tan curve sketch कर रहे हैं. Here will be the curve of tan. Main axis again 0, amplitude 1. tan में amplitude नहीं देखा जाता स्केचिंग के दौरान, तो हम 1 and -1 मार्क नहीं कर रहे. बस स्टार्ट हुए एक्सेस, इनफाइनाइट, एक्सेस, इनफाइनाइट, एक्सेस. फर्स्ट पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट. Like any confusion in tan curve? Clear? Clear? ये 3 कर्व तो आप लोगों के पास एएस में भी मौजूद थे, लेकिन अब जो कर्व हम इसके साथ करेंगे, ये कर्व हमारे एएस में नहीं है. हमें इनवर्स ऑफ साइन कॉस tan करना है. लेट्स से हियर इट इज v. Now y equals to 1 upon sin x, and y equal to 1 upon sin x is equals to cosec x. क्या होता है जनाब ये? cosec x. cosec x का कर्व हम स्केच कर रहे हैं, देखिएगा. वेरी सिंपल. इसी कर्व की हेल्प लेंगे हम, इसी कर्व की हेल्प लेंगे और कर्व स्केच करेंगे जनाब. ना ये हमने साइन कर्व भी यहां पर बना दिया. कॉसेक का कर्व अब हम बनाएंगे. सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 0.
The first value of sine is, guess who I have here? The first value of sine is 0. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/0, तो क्या मिलेगा हमें? Infinite. Infinite, right? So it means the first value will give you infinite. First value will give you infinite. Second value क्या है जनाब? 1. अगर 1/1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1. तो इट मीन्स सेकेंड वैल्यू हमारी जनरेट हो रही, 1 जनरेट हुआ. अगेन फिर क्या आ गया? 0 आ गया. 1/0 दोबारा क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया. इट मीन्स 180 डिग्री पर भी कॉसेक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. कॉसेक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. लेकिन फिर आगे चलिए, अगर -1 रखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या आंसर आएगा? -1. तो वही -1 प्रोड्यूस हुआ. ये वाली वैल्यू प्रोड्यूस हो गई. दोबारा 0 आ गया. जब 1/0 रखा जाएगा तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? इनफाइनाइट. मतलब दो हमारे मैक्सिमम मिनिमम तो प्रोड्यूस हुए, जो भी एक्सेस पर वैल्यूज थी वो कहां चली गई? इनफाइनाइट पर चली गई. तो अब देखें कर्व कैसे स्केच होगा इसका, सुनिएगा. इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट. सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम अपनी जगह पर रहेगा. मैक्सिमम मिनिमम अपनी जगह पर रहेगा. हमने चेक किया था, पहली वैल्यू पर भी इन्फिनाइट पर जा रहे थे हम, 180 पर भी इन्फिनाइट पर जा रहे थे, और 360 पर भी इन्फिनाइट पर जा रहे थे. अब अगर मैं यहां से साइन कर्व को रिमूव कर दूं, तो ये जनाब क्या बनकर आया हमारे पास? दिस इज द कर्व ऑफ cosec x. दिस इज द कर्व ऑफ cosec x. आर यू क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ साथ अब हम सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे किसका कर्व? नेक्स्ट 1/cos, and 1/cos is equals to 1/cos is y equals to 1/cos. हमें cos की वैल्यूज रखकर चेक करना है अब, और इसको क्या कहा जाएगा? sec x. cos का कर्व पिक किया हमने, cos का कर्व पिक कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जरा चेक करते हैं कि किस तरीके से sec का कर्व बनकर आएगा. हियर अब सुनिए फिर दोबारा से. अगर बच्चों ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? 1. ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? 1. 1/1 इज 1. 1 प्रोड्यूस हो गया. एंड व्हाट इज दिस? 0. तो 0 पर क्या होगा जनाब? 1/0 इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट वैल्यू इज -1. तो -1 1/-1 इज -1. ये प्रोड्यूस हो गई. एक्सेस की वैल्यू इनफाइनाइट पर जा रही है, बाकी तमाम वैल्यूज अपनी जगह पर रहेंगी. ये दोबारा इनफाइनाइट हुआ, और ये 1 प्रोड्यूस हो गया. हाउ टू स्केच दिस? Infinite, here it is infinite, here it is infinite, and here it is infinite. अगर cos कर्व यहां से रिमूव कर दिया जाए, तो ये कर्व किसका बनकर आ गया जनाब? sec का कर्व बनकर आ गया. Is this क्या दिस? 1 रखेंगे तो 1 आएगा. 1 पर 1 आया, एक्सिस पर इन्फिनाइट आया. -1 पे -1 आया, एक्सिस पर इन्फिनाइट आया. 1 पर दोबारा 1 आया. मैक्सिमम मिनिमम चेंज नहीं होते, एक्सिस वाले वो इन्फिनाइट पर पहुंच जाते. एनी कंफ्यूजन इन दिस कर्व? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव में बना रहे थे हम कॉस को, तो इसको भी पॉजिटिव में बनाएंगे. ठीक हो? यहाँ कॉस नेगेटिव में चल रहा था, तो ये भी नेगेटिव में चलेगा. After that, the third one. After that, the third one, inverse of 10. Y equals to 1/10x. और 1/10x किसके इक्वल होता है जनाब? cot x. 1/10 is equals to cot x. How can we sketch the curve of cot? चेक करते हैं. अब देखिए यहाँ पर तो वैसे ही इनफाइनाइट मौजूद है, तो क्या होगा जनाब? देखिएगा.
बच्चों याद रखिए एक्सेस वाला पॉइंट तो इनफाइनाइट पर पहुंच जाता है, एक्सेस वाला पॉइंट तो इनफाइनाइट पे जाएगा। दूसरा क्या आ रहा है जनाब, व्हाट इज एट 90, 90 पर इनफाइनाइट हो गया। 1/0 होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट, और 1 इनफाइनाइट होता है तो क्या होगा, 0। तो इट मींस जो इन्फिनिटी पर पॉइंट गया वो रिवर्स में आकर एक्सेस पर मौजूद हो, बिकॉज हियर इट इज 1/infinity। फर्स्ट पॉइंट 0 पर है, 1/0 इज इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट इनफाइनाइट पर है तो 1/infinity इज 0। अगेन 180 वाला कहां पर है, 0 पर है, तो ये कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा। और 270 वाला कहां है, इनफाइनाइट पर है, तो ये कहां आ जाएगा, ये 0 पर आ जाएगा। 360 वाला कहां है, 0 पर है, तो ये कहां आ जाएगा, इनफाइनाइट पर। अब देखिए कर्व कैसे स्केच होगा, पॉजिटिव में था 10, कॉट भी पॉजिटिव में किया, ये पॉजिटिव चला गया। हियर इट इज दिस वन, हियर इट इज सॉरी, हियर इट इज दिस वन। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में है तो नेगेटिव। जब 10 मैं यहां से रिमूव करूंगा तो क्लियर आपको नजर आएगा कॉट। दिस इज द कर्व ऑफ कॉट, दिस इज द कर्व ऑफ कॉट। बात समझ में आ रही, 90 पे इनफाइनाइट है तो एक्सिस पर आ गया, 180 पर ये तो 10 वाला बना हुआ था ना, ये वो लाइन नजर आ रही है आपको, ये। नाउ दिस इज द रियल कॉट पर, ओके। दो जगह इनफाइनाइट हुआ, कहां कहां, 180 पर और 360 पर। जबकि tan कर्व 180 और 360 तीन जगह इनफाइनाइट हुआ, 0, 180, 360, और 0, 180, 360 पर tan क्या था, 0 था। जब tan 0 है तो cot क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और जहां tan इनफाइनाइट है वहां cot क्या हो गया, 0 हो गया। इज दिस क्लियर? अब एक चीज सुनिएगा, एएस में आप लोगों ने कर्व्स बहुत सारे याद किए, मतलब बनाना सीखे, प्रैक्टिस की। y इक्वल टू 2 sin 3x plus 1, y equals to -2 plus cos x, y equals to 5 cos x -3। बहुत सारे कर्व्स हमने एएस में किए, राइट। लेकिन याद रखिएगा A2 में, लेकिन याद रखिएगा A2 में we have only 3 curves, y equals to cosec x, y equal to sec x, y equal to cot x। ये कर्व्स चेंज होकर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आ सकता y इक्वल टू 2 cos x प्लस 1, y इक्वल टू 3, कुछ भी नहीं होगा। ये तीन कर्व्स को अगर आप लोग याद भी कर लेंगे और एग्जाम में आ गया, वहीं बनाकर आ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। एएस के कर्व्स इंक्लूडेड हैं, उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। बट फॉर प्योर A2 वी हैव ओनली cosec x, sec x एंड cot x। इसके अलावा इसमें मजीद चेंजेस नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक हो गया जनाब। सो दीज आर कॉल्ड, these are some curves here is an equation of trigonometrical equation solving question of AS, sin x cos x minus cos x equals to 0। we have to calculate all the angles between 0 to 360 degrees। how can we solve this, देखिएगा जरा। नाउ अगर यहां से cos x कॉमन लिया जाए, so it will be sin x minus 1 equals to 0। first cos x equals to 0 and second sin x equals to 1। नाउ इसके बाद हम ड्रॉ करते थे ये एक्सेस और देखते थे कि कहां पर cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट हियर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब क्या करें, अब तो ये डायग्राम ड्रॉ हो ही नहीं सकती। अब आइए इधर, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एड शुगर
फर्स्ट एंड सेकंड में, लेकिन जब इसका साइन इनवर्स हम कैलकुलेट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, तो जनाब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 90। मतलब क्या हुआ, ये भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता बिकॉज इट इज इक्वल टू 90। ये डायग्राम भी गलत हो गई। यही चीज बताने के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने पिक किया था। याद रखिए, जब भी -1 हो, 0 हो और 1 हो, तो बच्चों साइन, कॉस, टेन की वैल्यूज हमें याद रखना है। साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमें याद रखना है। ठीक हो गया। कैसे याद रखना है सुनिए। हियर इज द कर्व ऑफ साइन। क्या साइन का कर्व नजर आ रहा है, साइन का कर्व नजर आ रहा है जनाब। साइन 1 कहां पर है, 90। साइन 1 कहां है, 90। -1 कहां है, 270। साइन 1 है 90 पर और -1 है 270 पर। 90 पर 1 और 270 पर -1। और जीरो कहाँ का है, जहन में लेकर आइए। 0, 180 एंड 360। ऐसा ही है ना। कर्व स्केच होना चाहिए हमारे जहन में और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे। कॉस -1 कहाँ है, 180 पर है। ऐसा ही है। कॉस 0 कहाँ का है, 90 पर है और 270 पर है। कर्व बन रहा है जहन में। और 1 कहां पर है जनाब, 0 और 360। कर्व जहन में बन रहा है। 10 -1 तो हो ही नहीं सकता 10, क्योंकि वो तो इन्फिनाइट होता है। तो 10 के लिए सिर्फ 0। 10 0 कहाँ का है, एक्सेस से स्टार्ट होता है, ठीक है भाई, 0 पर 0। फिर कहाँ होता है, 180 पर, और फिर कहाँ होता है 3। ये वैल्यूज याद रख, याद क्या रखनी है, कर्व जहन में स्केच करना है। जब भी बच्चों -1 0 1 आए, you don't have to sketch these kind of things. You don't have to like add sugar to coffee कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक हो गया। कर्व को ध्यान में लाकर आपने आंसर्स देने हैं। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, cos 0। cos 0 कहाँ कहाँ होता है, 90 एंड 270। sin 1 कहाँ होता है जनाब, 90। तो फाइनल आंसर यही है। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, इज दिस क्लियर, क्लियर, दैट्स ग्रेट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। Now students, we are starting compound angles. The first pure P3 trigonometry exercise, compound angles. It is same like how to solve different equations of how to solve different trigonometrical equations. Compound angles के थ्रू अब किस तरीके से चलना है हमें, आप लोगों ने AS में जब भी पढ़ा sin x cos x tan x, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। sin x cos x plus cos x sin x like this। लेकिन यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कभी sin 2x, कभी sin 3x। कंपाउंड एंगल्स पर भी आप जाएंगे। तो वी हैव सम फॉर्मूला, वी हैव सम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने। नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ। द फर्स्ट इज sin a plus b, it is equals to sin a sin b sin a cos b plus cos a sin, sin a cos b plus cos a sin। Second one is sin a minus b, sin a minus b, it is equals to
sin A cos B minus cos A sin B. Third one is cos A plus B. It is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Fourth one is cos A minus B, which is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Fifth one, tan A plus B, which is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Sixth one, हाथ पे लिख के लेके रहेगा A minus B is equal to tan A minus tan B over 1 plus tan A tan B. These are some simple formulae. Now here is question number 1. We have to evaluate. So the first part. अब जरा मुझे first part देखकर बताइए sin 50 cos 40 cos 50 sin 40 कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें? फर्स्ट फॉर्मूला, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं sin A plus B, so it is sin 50 plus 40 is 90 and sin 90 is sin 90 क्या होता है जनाब? 1 होता है. विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब आप देखिए 2a कौन सा फॉर्मूला है? sin A cos B plus cos A sin B. It is sin A plus B. It is sin A plus B. And what is A? A is A here. And what is B? B is 2a here. So the answer is sin 3a. Any confusion? E part. क्या कहा गया जनाब? दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है. 2 cos थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा sin थीटा. 2 कॉमन लिया और इसको हम क्या रीड कर रहे हैं? cos A cos B plus sin A sin B. So it will be equal to cos A minus B. A minus B. So here it is 2 cos 0 and cos 0 is 1. So 2 into 1. The result is 2. Any confusion? Clear? सही है? Okay, do the remaining parts. Okay, here is another question, question number 5. In this question, the diagram shows the graph of two lines A and B having gradients half and 3/2 as shown. मैं इन दोनों डायग्राम्स को अलग बना रहा हूं. Here is, let's say this is line A and here let's say this is line B. दोनों लाइंस को मैंने अलग अलग बना लिया. This angle is given beta, this angle is given alpha, right? Now अब देखिए जनाब, first they are asking about tan alpha. tan alpha. अब सुनिएगा, अगर मैं यहां पर ट्राइंगल कंप्लीट करूं, and what is the gradient of this line? Gradient of this line is half. And what is the gradient of this line? 3/2.
अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा हूं दोनों डायग्राम्स पे, नहीं गिवन है ना बेटा, ये रहा, ठीक है। अब आप देखिए, इफ द ग्रेडियंट इज 1/2, क्या मतलब होता है कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस स्लोप perpendicular over base. Gradient means perpendicular, rise over run. So what is rise here? It is 1. And what is run here? It is 2. What is rise here? 3. And what is run here? 2. Any confusion? Now we are doing first part A. Tan alpha. Tan alpha. And what is tan? Tan is opposite over adjacent. Tan is opposite over adjacent. Opposite is 1. Adjacent is 2. So tan alpha is 1/2. Second part, tan beta calculate कीजिए. What is tan beta? Again, opposite over adjacent, 3/2. Now we have to calculate in the C part tan gamma. Here is tan gamma. अब जरा गौर से देखिएगा डायग्राम को, गौर से देखिएगा डायग्राम को. क्या मैं लिख सकता हूँ? tan gamma is equal to tan beta minus alpha. Tan gamma is equal to tan beta minus alpha. Or can I write tan beta minus alpha as tan beta minus tan alpha over 1 plus tan beta tan alpha, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज देखा था. Now, what is tan beta? Tan beta is 3/2. What is tan alpha? 1/2 divided by 1 plus what is tan beta? 3/2. And what is tan what alpha? It is 1/2. In the numerator, by taking LCM, it will be 2 divided by. In the denominator, by taking LCM, 4 plus 3. 2 and 2 cancel here. So, what we have in the numerator will get 1 divided by 4, 5, 6, 7/2. And the final answer is 2/7. Any confusion? It's a question of your worksheet. Yes. Mazid? Yes.